Hello students. In today's class we'll be discussing integral calculus. We have already discussed what is differential calculus. So in today's class we'll be discussing integration, ठीक है, और the antiderivative भी बोलते हैं इसको. So what actually is integration? We'll be taking a few questions and we'll also be trying to understand that what is the concept of integration. कि अगर डेरिवेटिव होता है एक फंक्शन को ब्रेक करना, then integration is as simple as that to to obtain the function back from its derivative, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो जैसा कि लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन. तो पकड़ लो कोई भी एक फंक्शन को हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव निकाला, तो उस पर्टिकुलर जो डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देन वी आर finding the function back, we are trying to find the function back. So for this reason the process of integration is called the inverse process of differentiation. So if we consider a function f of x whose derivative with respect to x is another function f dash x, so some handy notes are given here, you can see and you can utilize them also. So अगर जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग वो फंक्शन वी आर गेटिंग द फंक्शन बैक एज वेल एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, वो सी हम लोग उसको बोलते हैं. एंड रिमेंबर दैट एफ डैश एक्स इज आल्सो नोन एज इंटीग्रैंड. सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड. एंड ये जो स्नेक जैसा एक टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो here they have taken one method कि ddx of x to the power n plus 1, which is nothing but n plus 1 सामने आ जाता है, जैसे ddx of x to the power n का फॉर्मूला है, n सामने आ जाता है into x to the power n minus 1. तो n plus 1 minus 1 में प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाता है. तो वहाँ पे उन लोगों ने ट्राई किया है कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर टर्म को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, देन आर वी गेटिंग द फंक्शन बैक और नॉट. सो दिस इज द क्वेश्चन. So some questions that have been tried there. Okay, this is so far that is given in the book, but we shall be knowing some more formulas also. So basically what is derivative and what is integration, constant क्यों आता है, ये सब हम लोग जानेंगे आगे चल के. So some formulae before that we discuss कि integration of x to the power n dx है x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c, जो वही ddx of x to the power n था, n into x to the power n minus 1. सिमिलरली ddx of log x था 1 by x. तो यहाँ पे अगर 1 by x को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, then we are getting log x. और ddx of e to the power x is e to the power x. So integration of e to the power x dx is also e to the power x plus c. constant term हमेशा रहेगा. Similarly another formula that ddx of minus cos x is sin x. ddx of cos x अगर पकड़ोगे तो यहाँ पे sin का आगे माइनस आ जाएगा. ddx of cos x will be minus sin x. So integration of sin x dx is minus cos x plus c. Similarly ddx of sin x is cos x. So integration of cos x dx is sin x plus c. And remember कि ddx of cos x का टाइम पे sin x का सामने माइनस साइन आता है. सिमिलरली इंटीग्रेट जब करोगे तो यहाँ पे cos x जो आएगा उसका सामने भी एक माइनस सिंबल रहेगा ही रहेगा. So these are some of the formulae. Other formulas are also given, so you can write them from there. And all these formula are applicable to higher secondary, HS second year. So what actually is indefinite integral? The definition is also given here. Let f(x) be a function, then family of all its primitives, जो antiderivatives भी बोलते हैं उसको, is called the indefinite integral of f of x and is denoted by integration of f of x dx. The symbol integration is reading as indefinite integral of f of x dx, क्योंकि ये integration defined नहीं है, लिमिट नहीं दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से 4 तक या 3 से 5 तक. जब यहाँ पे लिमिट डिफाइन हो जाएगा तब हम लोग उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं. So the process of finding an indefinite integral of a given function is called the integration of the function. So all these are given. So another way that another explanation that it is integration is the inverse process of differentiation. Okay, in other words integration is the process of finding a function whose derivative is given, जैसा कि हम लोग पहले ये डिस्कस कर चुके हैं. तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव के टाइम पे हम लोग पकड़ते हैं लेट y इक्वल टू ये, फिर उसको dy dx करते हैं. But in integration that particular, like y we are considering this as the
डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और सुंदर सा एग्जांपल कि sin x कोई भी एक फंक्शन है, अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव करते हैं, जैसे ddx ऑफ sin x इज cos x, ठीक है, तो हम लोग अगर cos x को इंटीग्रेट करते हैं देन वी आर गेटिंग sin x बैक। सो यहाँ पे एक c रहेगा, डेफिनेटली इट शुड बी sin x प्लस ए कांस्टेंट, और ये c क्यों आता है, ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है, वो स्केल को तुम मान लो कि वो एक फंक्शन है, ठीक है, एनी फंक्शन, ऑल्दो दोनों का कोई कंपेरेबल नहीं है, एक फंक्शन और उस पर्टिकुलर प्लास्टिक का स्केल का। तो एग्जांपल पे ध्यान देते हैं, यू हैव ए प्लास्टिक स्केल, वो स्केल तुम्हारा टूट जाता है। तो सपोज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो व्हाट डू यू विल नॉट बी फाइंडिंग, सपोज okay, suppose you are not finding, you don't have a stationery shop near your home, so you are finding difficult to buy one scale now. So what do you do basically is you take some Febiquick and try to paste the broken scale. तो ये जो स्केल को हम लोगों ने तोड़ा या जो गलती से टूट गया उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे, और स्केल को जब हम लोग फेबिक्विक के साथ जोड़ेंगे ना तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। स्केल हो गया फंक्शन, स्केल को जब हम लोग ने तोड़ दिया तो दो पार्ट में टूट गया, उसको हम लोग जो दो पार्ट ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे, और वो दो पार्ट को जब हम लोग फेविकॉल या फेविक्विक के साथ जोड़ देंगे उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग फेविक्विक के साथ उसको जोड़ते हैं तो एक एक्स्ट्रा फेविक्विक भी, पहले जब स्केल जो फंक्शन तुम्हारे पास था, ठीक है, पहले जो तुम्हारे पास जो फंक्शन था वो है स्केल, पूरा कंप्लीटली स्केल, उस पर कहीं पे भी फेविक्विक लगा हुआ नहीं था, लेकिन उसको इंटीग्रेट करने के बाद एक नया टर्म आ जाता है, वो है तुम्हारा फेविक्विक। सो दैट पर्टिकुलर फेविक्विक यू कैन कंसीडर इट इज योर कांस्टेंट सी, ठीक है। दूसरा मेथड है उस स्केल को बनाने में, वो मैं जब एज वी एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी टेलिंग द अनदर मेथड ऑफ मेकिंग द स्केल, जहाँ पे वो कांस्टेंट सी नहीं आएगा, वो कब नहीं आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर एग्जांपल में। फिलहाल के लिए अभी एग्जांपल ले लो कि जो तुम्हारे पास प्लास्टिक का स्केल था वो तुम्हारा फंक्शन है, उसको तुमने तोड़ दिया, वो हो गया डिफरेंशिएशन, अब उसको तुम फेविक्विक से जोड़ रहे हो, वो हो गया इंटीग्रेशन। जब तुम्हारा स्केल टूटा हुआ नहीं था तो उस पर कुछ फेविक्विक का आइटम्स नहीं था, लेकिन जब तुमने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक नया टर्म फेविक्विक आ गया, दैट पर्टिकुलर फेविक्विक इज योर कांस्टेंट, ओके। ये एग्जांपल याद रखना, वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए। डेफिनिट इंटीग्रल में दूसरा तरीका स्केल को बनाने के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, जैसे ddx ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो वेयर c इज ए कांस्टेंट यहाँ पे बताया गया है। So the integral containing c, that is called the indefinite integral. In practice c is generally not written, though it is always implied. ठीक है, मतलब जनरली हम लोग c नहीं लिखते हैं बट लिखना जरूरी होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिया गया है, जैसे ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज तुम लोगों को पहले ही मैंने दे दिया है, जो हम लोगों ने क्लास डिफरेंशिएशन का स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जब खत्म कर लिया था तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ऑल दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। सो राइट नाउ इफ वी सी द dx ऑफ x 1 था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x, dx ऑफ x टू द पावर n, और ddx of x to the power n plus 1 by n plus 1 is x to the power n, तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ही, जैसे हम लोगों ने ddx of x to the power n को बेस मान के बहुत सारे डेरिवेटिव्स कर लिए थे, तो उसी भी तरह इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को भी हम लोग आगे बहुत ही यूज करेंगे। सिमिलरली ddx of log x is 1 by x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is log x, क्योंकि इंटीग्रेशन टर्म इज y and then your dx, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ddx को हम लोग कैसे पकड़ते हैं, लेट y दे के हम लोग इक्वल टू दे के कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं कि लेट y इक्वल टू ये फंक्शन है, उसको हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल हमेशा ये जो स्नेक का जैसा सिंबल है उसके साथ dx रहता है, मतलब इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x देन d dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y dx बोलते हैं इसको। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x, ddx ऑफ cos x था माइनस sin x, सो यू कैन राइट ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर गिवन हियर। सिमिलरली ddx ऑफ sin x हम लोगों को मिला था cos x, तो अगर हम लोग cos x को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x देन वी आर गेटिंग ए sin x।
So all the important formulas are given here, which you will be writing in your copy, which will be very helpful for you. So अब ये टर्म है डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया. यहाँ पे तुम जो इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, ये पकड़ लो, दो टर्म है यहाँ पे. हम तुम ये वाला पर्टिकुलर जो है वो लिमिट वो डिफाइन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तब जाके वो कांस्टेंट सी आता है. ठीक है, तो अब क्या करते हो, मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूँ. हाउ डू यू गेट योर स्केल बैक, ओके, एंड हाउ योर लाइक यू नो दैट एक्स्ट्रा फेविक्विक टर्म जो है, जो तुम्हारा पहले आ गया था जब तुमने घर पे उसको ज्वाइंट किया था, वो अब नहीं आएगा. वो टर्म, वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, when an integral is defined between two definite limits a and b, it is said to be a definite integral. मतलब एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को मैंने इस पर्टिकुलर दो लिमिट के बीच में ही करना है. ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन है where phi x is called the integral of f of x. So एग्जाम्पल सुनो. So एग्जाम्पल कुछ ऐसा है. Now your scale has broken. Okay, प्लास्टिक का स्केल था, and what did you do? You have kept that at your home, like जो broken scale, तुमने उसको खुद और fix नहीं किया. And the people who come to pick the plastic items, so you have sold it to them. So what did they do? They took your scale to the factory, melt किया उसको, and then shaped it into a new scale and sent it to the shop. Okay. नाउ शॉप पे जाके जब तुमने उस अपने ही स्केल को, तुम्हें तो पता नहीं है कि तुम्हारा स्केल है सपोज, तो तुमने अपना ही स्केल को खरीदा, तब उस पे कुछ भी फेविक्विक वगैरह लगा नहीं था. ठीक है, देयर वाज नो फेविक्विक इन देम एट ऑल. सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर गेटिंग योर स्केल बैक. सो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि उसमें कोई भी एक कांस्टेंट टर्म नहीं था. फेविक्विक द कंपनी वालों ने कुछ एक डेफिनेट एक बाउंड्री सेट किया होगा कि स्केल को ऐसे से ऐसे हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, तो उन लोगों ने वही लाइक यू नो बेंचमार्क को सेट करते हुए या मानते हुए उस स्केल को फिर से लाइक एज ए न्यू स्केल बनवा दिया. सो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन. एग्जांपल्स विल कंटिन्यू, बट लेट्स टेक ए फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट. सो इंटीग्रेशन द टॉपिक, दो पर्टिकुलर फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला हम लोग को डेरिवेटिव में मिल चुका है, ddx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. अगर इस पर्टिकुलर x to the power n को अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तब क्या होता है, x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c, एक c एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है. ठीक है, तो ये दो काफी पॉपुलर फॉर्मूला है. तो y एक फंक्शन है. मैंने इसी तरह से आज का कुछ क्वेश्चंस लिया है कि मैंने उस पर्टिकुलर एक फंक्शन को पहले डेरिवेटिव किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, और फिर इंटीग्रेट करने के बाद मैंने उसको निकाला, मतलब आई ट्राई टू फाइंड इट आउट वेदर द फंक्शन वेदर रियली आई एम गेटिंग बैक द फंक्शन बैक और नॉट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो द क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4. तो मैंने गिवन लिखना है, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4. So differentiating with respect to x, we get ddx of x cube minus 3x square plus 4. So ddx of x cube is 3 सामने आ जाएगा, x to the power 3 minus 1. फॉर्मूला जो है ddx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. So ddx of x cube is 3x square. Similarly ddx of 3x square क्या होगा, तुम्हारा 3 डिफरेंशिएशन का बाहर आ जाएगा, being a constant. फिर ddx of x square is twice x, so 3 into 2 6x, and ddx of a constant is 0. तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव, जो फंक्शन है x cube minus 3x square plus 4, उसका डेरिवेटिव हो गया 3x square minus 6x. अब इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेट करने के बाद am I getting my function back or not. Okay, so we tried to integrate it with respect to x. So integration of 3x square minus 6x dx, तो हम लोगों ने लिखा है इसको integration of 3x square dx minus integration of 6x dx. तो 3 being a constant, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. So integration of x square dx minus 6 being a constant, ये भी इंटीग्रेशन का बाहर, integration of x dx. ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx का फॉर्मूला का बेस का हम लोग यूज करेंगे. तो तब क्या हो जाएगा, x to the power n plus 1 by n plus 1, which is the formula. Here my n is 2.
Similarly यहाँ पे n 1 है, so in that case x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, the formula which have been given above also, और यहाँ पे भी अच्छे से दिया गया है कि x to the power n इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x to the power n plus 1 by n plus 1. So this is the formula that you need to memorize it. या फिर प्रैक्टिस भी काफी बार करोगे तो आ जाएगा अपने आप. So 3 into x cube by 2 plus 1 3, so 3 cancels out. X square 1 plus 1 2, 2 3 just 6. So the answer I am getting is इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x, जो डेरिवेटिव था अगर उसको मैं इंटीग्रेट करता हूं देन आई एम गेटिंग द टर्म x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस c. ओके, अब ये c क्यों आया? क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन में एक 4 भी तो था जिसको हम लोगों ने जब डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया था, वो 0 हो गया था. तो जो फंक्शन था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन तो ये जो कांस्टेंट है, पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव में 0 हो गया था. तो ये पर्टिकुलर टर्म इंटीग्रेशन में कैसे आएगा? इसीलिए हम लोग वो कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इंटीग्रेशन में वो पर्टिकुलर कांस्टेंट आया है या नहीं. सो फॉर दैट रीजन वी राइट a constant c, okay, in indefinite integration. So the function that I have taken was x cube minus 3x square plus 4. So the answer that I got is x cube minus 3x square plus c. तो 4 के जगह पे एक c आ गया. So c is a constant. कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन का. उससे पहले हम लोग एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर x. इसको डेरिवेटिव करेंगे. तो डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे दैट वी आर गेटिंग द फंक्शन बैक और नॉट. Let y equal to sin square x. So differentiating with respect to x we get dy dx equal to ddx of sin square x. तो ddx of sin square x तो मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे ये पता है कि अगर हम लोग इसको x to the power n टाइप का मेथड में करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को मैं x पकड़ता हूँ और इसको n पकड़ता हूँ, then ddx of x to the power n is n सामने आ जाएगा into x to the power n minus 1. 2 minus 1 तो 1 ही है यहाँ पे, तो sin x to the power 1 is sin x. अब मैंने इस पर्टिकुलर टर्म को x पकड़ा था तो इसको डेरिवेटिव करना है. तो 2 into sin x and ddx of sin x is cos x. तो 2 sin x cos x is the formula of sin twice x. So ये हो गया मेरा डेरिवेटिव. अब इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट करूंगा and I will try to find it out if I am getting my function back or not. So let's just see. So sin twice x dx को मुझे इंटीग्रेट करना है. So integration of sin mx dx is minus cos mx by m plus c. ओके, ये है फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx इज माइनस कॉस mx बाई m प्लस c. तो ये फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे cos twice x by 2 आ गया, जो फॉर्मूला ऊपर दिया गया है. इफ यू सी द फॉर्मूलास इट इज वेरी नाइसली रिटन. सो नाउ व्हाट डू आई डू? अब cos twice x का फॉर्मूला है cos square x minus sin square x. यहाँ तक भी रखने से तुम्हारा इंटीग्रेशन करेक्ट है, बट सिंस वी हैव टू शो और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, वी आर इंटरेस्टेड एक्चुअली टू फाइंड इट आउट इफ वी आर गेटिंग आवर फंक्शन बैक और नॉट. सो फॉर दैट रीजन we are breaking the formula of cos twice x, which is cos square x minus sin square x. cos square x को मैं लिख सकता हूँ 1 minus sin square x. So 1 minus sin square x minus sin square x is 1 minus 2 sin square x. So minus half into 1 is minus half, and minus a plus 2 cancel. I am getting sin square x. So the term I will be getting is minus half plus sin square x plus c. तो sin square x plus c minus 1 by 2. तो c minus 1 by 2 जो टर्म है उसको मैं एक बार करके इसको बड़ा करके लिख देता हूँ एज ए कैपिटल सी, सो दैट ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों मिला के एक और एक कांस्टेंट दे देता हूँ मैं. c minus 1 by 2 is another constant is capital C. So I'm getting my function back, okay, and as well as a constant also of integration. So that means what? Integration is the inverse of differentiation, okay, because I am able to find out the function back. मैंने इसको डेरिवेटिव किया, I have got the answer as sin 2x. मैंने sin 2x को इंटीग्रेट किया, I am getting my result as sin square x back again. Thus integration of sin 2x dx is sin square x plus c. We are taking another question. Integration of dx by 1 plus cos x. Okay, so how do we do this? We are rationalizing the term here 1 plus cos x into 1 minus cos x. ऊपर भी 1 minus cos x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली ये और ये कैंसिल हो जाता है actually. So we are getting this term back actually, but what we are doing is we are multiplying with the same term. ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको.
तो नीचे क्या हो जाता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है, देन इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर 1 माइनस cos x अपना जगह पे ही रहता है। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x, so 1 by sin square x, this is already in LCM form, so what I am doing is 1 by 1 minus cos x by sin square x जो है उसको मैं लिखता हूँ 1 by sin square x separately minus cos x by sin square x into dx। सो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मैं उसको 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ही रखता हूँ, और cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या करता हूँ, मैं पहले cos x बाई साइन एक्स लिखता हूँ इनटू 1 बाई साइन एक्स, सो दैट आई एम गेटिंग सम गुड टर्म्स टू इंटीग्रेट। क्योंकि देखो sin x इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स एंड cos x इंटू 1 इज cos x, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। और तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos x स्क्वायर एक्स, cos x बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं cot x, एंड 1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं फिर से cosec x इंटू dx। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे ही इंटीग्रेशन तुम हटा दोगे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx इज माइनस cot x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x cos x इज माइनस cosec x। ओके, तो माइनस cot x हो गया यहाँ पे, माइनस से प्लस, और इंटीग्रेशन हट गया है, तो ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया था, इसको मैंने डेरिवेटिव नहीं किया था बट डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर दिया था। ठीक है, सो these are some questions that will be very helpful for your examination, as well as at the same time this will be very important to brush your concepts of integration. Usually students say that integration is difficult than differentiation, but if you practice them sincerely on a regular basis, both are very easy and marks are guaranteed if you are like regularly practice करके जाते हो तो। Now coming to definite integration, जैसा कि तुम देख रहे हो कि इंटीग्रेशन का सामने लिमिट दिया हुआ है कि मुझे x क्यूब dx को 2 से लेकर 2 और 4 का अंदर इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जो तुम्हारा स्केल टूट गया उसको तुमने फैक्टोरी पे भेजा, तो फैक्टोरी वालों ने कुछ एक बेंचमार्क सेट करके इसको तुम्हारे प्लास्टिक वाले स्केल को क्या किया फिर से, और एक नया स्केल में कन्वर्ट कर दिया आफ्टर मेल्टिंग द प्लास्टिक। सो सम straightforward benchmark or some condition they have followed. So what to do here, integration of x cube dx, so basically मैं देख के यहाँ पे बता के सकता हूँ कि ये क्या होगा x to the power 4 by 4, क्योंकि x to the power n integration of x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1, तो x to the power 3 plus 1 will become 4, एंड यहाँ पे जैसे देख सकते हो x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1, और ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगा, ये अपर लिमिट या लोअर लिमिट। तो x to the power 4 by 4 आ गया, 1 by 4 being a constant ये बाहर आ जाएगा, तो x to the power 4 4 2 so x to the power 4 is here and 2 is there, so you will just try to find it out. Okay, you will just try to find it out the answer and then show it to me. Okay, 1 by 4 x to the power 4 and 2 is here, so within this particular limit of integration you will try to solve this of the value of x that you will be finding out. Okay, so with this we complete we have a few more questions that we can be taking place. I have provided a few more questions that you will be able to do them. Integration of x to the power 4 dx, integration of root x dx, integration of 1 by root x dx, integration of 1 by x cube dx, and so on. You will be trying to solve them, which will be very helpful for you. And there are other questions also. Integrate the following, you can use them to find your integration, and also integrate the following terms as well. Okay, so and there is one more for definite integral also. some definite integral है कि यहाँ पे जैसे हो गया तुम्हारा integration of x dx from 3 to 5 you need to integrate them, so इसको भी तुम integrate कर सकते हो काफी easily. Similarly for question number 14 also you can integrate in the same way, so this is very easy to do. So with this we complete our lecture on integral calculus, and hopefully we will be trying to solve a few more questions in coming classes, where we will be taking a few more questions on integration. Definite integrals का भी एक दो questions लेंगे, क्योंकि आज definite integral अच्छे से उतना clear नहीं हुआ है, but we'll be trying to take more questions on definite integrals also, and also we'll be taking a few more questions on indefinite integral also, so that our concepts are completely cleared.